اتنی نعت خواہ اور اتنی پیار سے پڑھنا، عشق رسول عشق رسول، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اور جو ہے عاشقان رسول پہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور یہ تو ماشاءاللہ بالکل 100% ہے کہ جہاں پر حضور کا نام لیا جائے یا حضور کی محفل ہو وہاں فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو صرف دوائی دیتا ہے، شفا دینا تو اللہ کی بے ذات شک ہے. بے شک. اور آپ بھی تو بولتے ہیں یار دوائی ہم دے رہے ہیں، شفا دینا. اور ہر مریض کو جو ہے اس عقیدے سے ہی دوائی لینا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ ہی کے ہاتھ کی شفا ہوتی ہے کہ وہ دوا دیتا ہے اور اسے فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، دیکھیں مارکیٹ میں تمام چیزیں وہی ہوتی ہیں، تمام دوائیاں مارکیٹ کے اندر ملتی ہیں، لیکن اس کی جو بھی فارمولے ہوتے ہیں وہ مختلف ڈاکٹر کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اور یہ بھی تو شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ میں بھی تو شفا دی ہوئی ہے. ہاں، ایک ہاتھ میں شفا وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ میرے والدین میرے لیے اتنے ماشاءاللہ دعا گو تھے. اور یہ جتنی بھی آج میں اپنے آپ میں ترقی جو بھی خوشی دیکھتا ہوں، میں اپنے والدین کا بہت احسان مند ہوں کہ صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں موجود ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج اگر بابا صاحب خوش ہوتے تو آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے. اور ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر صاحب تو ایک ذریعہ ہوتا ہے شفا دینے والے، شفا اللہ کے ہاتھ. کیونکہ دیکھیں نا رمضان کے بامرکت مہینے کے اندر 98 روزے کو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ اتنے یعنی کہ حاجی نمازی پرہیزگار تھے وہ. اور ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سبھی اسی طرح کے ہیں کہ ہماری کوئی نماز وغیرہ نہیں چھوٹتی ماشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہماری کوئی ایسی یعنی کہ چیزیں نہیں ہیں جو اتنی مقبولیت کا شرف رکھیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول کرے. صاحب یہ سمجھو کہ دنیا ایک میلہ ہے، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے. روتے ہوئے آئیں گے، بس جائیں گے، ہنستے جائیں گے. ہاں یہی کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوستوں کے بھی جو میرے ویورز میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے اگر کسی کے دل کی آزاری ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، میں معافی مانگتا ہوں. بالکل میں بھی اپنے دل سے جو ہے سبنی کا معافی گندس जेके कॾहिं कॾहिं थी वेंदो आहे इतफ़ाक़ सां अहिड़ो को लफ़्ज़ निकिरी वेंदो आहे. ऐं पंहिंजी फैमिली जेका मुंहिंजी फैमिली बि अगरि टेलीविजन में ॾिसनि पिया ज़रूरु ॾिसंदा हूंदा, उन्हनि खां बि मां माफ़ी गुंदसि. तमामु सभिनीनि माण्हुनि खां मुंहिंजी जेको आहे सचे दिलि सां माफ़ी गुंदसि. बिल्कुलु बख़्शिश जो आहे, माफ़ी जो आहे. ऐं असां बि पंहिंजे जेसि ताईं तव्हां पंहिंजे दिलि मां असांखे माफ़ कोन कंदा तेसि ताईं माना डॉक्टर साहब ईंदासीं. हिकिड़ो क्वेश्चन है मूंखे हिकिड़ो पूछना है डॉक्टर साहब, आपसे मुझे एक सवाल करना था. लेडीज के बारे में तो बहुत बातें हुई हैं, थोड़ा जेंट्स के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल. हम बेचारे कहाँ जाएंगे, हमारे देखो साकिब भाई ये भी नात पढ़ने जाते हैं, कोई हमें भी नुस्खा बता दो. नहीं, इनका एक क्वेश्चन एक क्वेरी है जो मुझे बहुत लोगों की तरफ से ज़रा मुझे था कि मैं उन्होंने कहा कि आपसे मैं पूछूं, जब आपके प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आए तो उनसे पूछेगा शेव जब करते हैं या आप मशीन चलाते हैं, मशीन लगाते हैं जो शेविंग मशीन होती है, उसके बाद वो स्किन बड़ी ड्राई और रफ हो जाती है और ब्लैक हो जाती है. और उसके बाद फिर क्या बाल भी उसके बाद थिक निकलना शुरू हो जाते हैं कुछ एरियाज में? ये ऐसा होता है कि देखें जैसे किसी के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, किसी के कम होते हैं. और बाज़ ऐसा होता है कि शेव के बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. और उसमें ये होता है कि अगर जैसे कोई बैंकर हैं या कोई किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ डेली शेव करना पड़ता है, तो जो है डेली शेव करना पड़ता है, तो उसमें अगर आप अच्छे ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उससे कुछ नहीं होता. लेकिन बाद में ये है कि आप शेव बनाने के बाद आफ्टर शेव ज़रूर करें. ठीक है, आफ्टर शेव बहुत ईजी है. 2-4 कतरे आपने डाले और हाथों पे मल के आपने टैपिंग करनी है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है. अगर वो भी मौजूद नहीं है तो घर में फिटकरी तो होती है, तो आप शेव बनाने के बाद उसे पानी के साथ आप कर लें. उससे फायदा एंटीसेप्टिक है जो है, क्या नाम है, कोई यानी कि जर्म्स वगैरह नहीं लगते. वरना अमूमन जो बहुत ज़्यादा हेयर ड्रेसर की शॉप पे करवाते हैं शेव, तो वो हाइजेनिक नहीं होते, स्टरलाइज नहीं होते. और बाज़ दफ़ा बस देखते हैं कि वो देखे होगा आपने एक बड़ा सा बोतल होती है, उसमें चंद खतरे डिटोल के डाल के ना इतने सारे वो उसमें लटकाए हुए होते हैं. अब उसमें बहुत एहतियात करना चाहिए कि जो है ना ब्लड नया होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए. बिल्कुल. इसी से हेपेटाइटिस होता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो वो व्यूअर्स हमारे सुबह बुद्धो पे बाल तो कटवाए ना सैलून से. हाँ, नहीं शेव भी बनवाएं, लेकिन आप उनसे कह दें कि ये कर लें. और दूसरा ये कि मर्दों के लिए भी अप्सरा ब्यूटी क्रीम हमारी मर्दों हजरात के लिए भी है, खवातीन के लिए, मर्दों के लिए. और माशाल्लाह आप देखिएगा स्किन आपकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होगी. काम कीजिए अगली बार जब आए ना तो ये पूरी टेबल भर देना. और मैं यही पे ईद के बाद यही पे कॉल अटेंड करेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं फौजिया शमीम बात कर रही हूँ कराची से. कौन बात कर रही हैं? फौजिया शमीम कराची से. फौजिया जी, फौजिया प्रोग्राम आप देख रही हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. कोई सिद्दीकी से एक नाज सुननी थी. जी 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 वो है आमद मुस्तफी खुशियाँ मनाएंगे वो. अच्छा वो हमारे ठीक है, आपको सुनाते बिल्कुल सुनाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू.
अच्छा, हम आपसे ये आखिर में सुनेंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, पर ब्रेक का टाइम है। ब्रेक का टाइम है। व्यूअर्स के नाम जो इफ्तार विद आवाज़ अवां सां गॾु आहे, असां सां गॾु आहे ऐं असां बि हिन प्रोग्राम में तव्हां वेठा आहियूं, पर ब्रेक जो टाइम आहे, ब्रेक खां पोइ अवां सां गॾु आहियूं। वेलकम बैक वंस अगेन टू योर फेवरेट प्रोग्राम इफ्तार विद आवाज़। ऐं असां सां गॾु डॉक्टर साहब मौजूदु आहिनि, डॉक्टर रिज़वान ऐं नाथवा बि मौजूदु आहिनि। साकिब तव्हां कॉल करे उन्हनि खां जेको पंहिंजी फरमाइश भी करे सघो था। इन में पाण हलो तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ईद के लिए आपने जो पैकेज वो तो अनाउंस कर दिया है, आपने कहा था कि ईद के एक हफ्ते के बाद या यानी कि ईद से जो है 10 दिन तक के अंदर अंदर, अच्छा बिटवीन 10 डेज जो है कोई भी अगर आपके अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक में आता है, जी सैलून के अंदर आके वो रजिस्ट्रेशन करा लें अपनी कि जी ये शादी कार्ड ले आए या बता दें कि जी इनकी शादी है। अच्छा। और जो है इस तरीके से है ओके, हमने आवाज़ टीवी पे देखा था, उसका रेफरेंस दे देंगे। वेलकम के बाद सर दावत तो नहीं देनी ना आपको? हाँ, वेलकम के बाद आपको दावत तो नहीं देनी? नहीं, दावत नहीं, बस दुआओं के तलबगार हैं। अच्छा ठीक है, दुआएं मिल जाए बस, ये काफ़ी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इन फ्यूचर आपके क्या प्रोग्राम है अप्सरा के हवाले से? आपकी कुछ आउट ऑफ कंट्री जाने जो का है कुछ? ये देखिए कि जो है हमारा अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सैलून तो अभी हमारा इफ्तिताह हुआ है, बाकी क्लिनिक को माशाल्लाह 10 इयर्स हो गए हैं, उसी की खुशी में ही हमने वो किया है। बस ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि उनको रिजल्ट जो इतने भी हमारे क्लाइंट हैं उनको VIP मिल रहा है। लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि इंटीरियर में, यानी हैदराबाद हुआ, लाड़काना हुआ, सखर हुआ, कुछ छोटी सर छोटी अगर branches होगा तो जाएं। इंशाल्लाह या तो हैदराबाद में या लाड़काना में करूंगा। अच्छा। आपके शहर में करूंगा, लाड़काना में, ताकि मेरा वहाँ शहर के लोग बहुत हैदराबाद है, मोहब्बत सर। वाले होते हैं। ये हैदराबाद के है, हैं। हम हैदराबाद के हैं। अच्छा, मैं हैदराबाद या लाड़काना गाँव कुछ बात। गाँव हैदराबाद के हैं, क्या बात है। चलिए ये खोल लें, क्योंकि एक ब्रांच कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। क्या अच्छा, बात कितने प्रोडक्ट है आपके पास? आपकी कुछ प्रोडक्ट हमारे पास जो है मेरे क्लिनिक के अंदर जो है जिन डिजीज़ पे मैं ज़्यादा वर्क करता हूँ, ओबेसिटी का बहुत बेहतरीन है, मोटापे का यानी कि मुकम्मल इलाज है। मैंने तो उन लोगों को भी यानी कि कहा है कि जो लोग अपना लाइपोसक्शन कराने का मूड बना चुके हैं कि नहीं जी मैं मोटापे अब कम नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो लोग भी आएँ और हमारी जो हर्बल प्लस होम्यो मेडिसिन है इसे इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह देखिए कि 1 मंथ में कितना उनका वेट रिड्यूस होगा मेडिसिन अच्छा। से। जी बिल्कुल। अच्छा 30 डेज में 30 डेज के अंदर ही 15 से 20 पाउंड वजन कम होता है। 15 से 20 और कोई यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सख्त डाइटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल बैलेंस डाइट रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर ऑयल का है, गिरते हुए बालों के लिए, जिन खवातीन को बाल लंबे करने का शौक है उनके लिए बेहतरीन है कि बालों का वॉल्यूम बढ़ता है, बाल घने लंबे चमकदार। गिरना तो फौरी तौर पर स्टॉप हो जाता है। अच्छा। एक पैकेज 2 महीने तक चलता है और 2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, अच्छा। अब जैसे एक साहब का फ़ोन भी आया था फंगस वगैरह का, वो मुझे अगर बाद में कॉल करेंगे तो उसकी कई वजूहात होती हैं किस वजह से है। बाज़ लोग खारा पानी इस्तेमाल करते हैं बाल धोने के पानी लिए, से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, होता है। बहुत लेकिन फर्क डॉक्टर साहब एक और बात भी होती है कि आप कि जो मतलब आप इनटेक है, आपका जो फूड है, वो आप क्या जरूर खा रहे होना हैं, चाहिए। बिल्कुल, वो बाज़ लोग ऐसा होता है कि फिश आपका इस्तेमाल ही नहीं करते, हालांकि जो है फिश का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फंगस वालों के लिए नहीं। लेकिन नॉर्मल हेयर जिनके हैं उसमें आप फिश का दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रखेंगे तो उतने ही बाल आपके घने होंगे और चमकदार होंगे, स्किन पर भी आपकी चमक आएगी। इसके अलावा काला और दूध सांवला और दही रंग के खाने से ना, लिए- जी दूध दही खाने से भी खाएं भी और लगाएं बिल्कुल लोग लगाते भी हैं। जी लगा भी लोग सकते हैं, लगाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा लेते हैं। लगा सकते दही से तो बहुत फवायद हैं। अगर आप अपने खाने में, आप शहरी में ही ये देख लें कि आप 2 चम्मच दही का इस्तेमाल रखेंगे तो भूख और प्यास आपको शिद्दत बहुत कम हो जाएगी। हैं। गर्मी में अगर आप दही जी ज्यादा बिल्कुल, खाते लस्सी हैं पी लें आप शहरी में, या जो है आप दही के 2-4 चम्मच खा लें तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। क्योंकि और दूसरे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे इफ्तार में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, Oily अगर चीज़ें वो होती हैं। छोले खा लें, चने खा लें तो फाइबर भी है, आपको ताकत भी मिल रही है, हॉर्स पावर होती है उसके अंदर, फ्रूट चाट होती है। अच्छा, इसके साथ साथ इजी पैन गोभी है हमारा, जो जॉइंट्स पैन होते हैं ओवरवेट होने की वजह से, बुढ़ापे की वजह से कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, जोड़ पट्टों में जो दर्द है, तो उसकी 1 दिन की दवा से इतना ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि वो देखने के काबिल होता है माशाल्लाह। उसमें यानी कि टैबलेट्स हैं और एक ऑयल होता है मसाज ऑयल, जिसका वो मसाज करें। बुजुर्ग जो यानी कि चेयर्स पे या सोफे पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह ज़मीन पे आराम से अपनी नमाज अच्छा, पूरी अदा करें। जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त डॉक्टर साहब, जबरदस्त। माशाल्लाह। आपसे हमारे जितनी गुफ्तगू करें उतनी कम कम है, है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि आप फिर हमारे पास आएंगे। बिल्कुल और यही मोहब्बत है सर, जब आप बुलाते रहेंगे हम आपकी बात आते नहीं, रहेंगे। आप बिल्कुल, ये है अच्छा, कि आपको आप तो तो आना हमारी ये टीम के हिस्से बन गए, हमारे समझो कि
ये जब यहाँ पे जब नहीं बैठे होते ना वहाँ पे मिस करते डॉक्टर बिल्कुल। साहब। एक बार मैंने एक नाथ खाओ मैंने डॉक्टर साहब को बताया ये भी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू साकिब भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी नाते सुन के। पर जाते जाते जो कॉलर की फरमाइश है ये वो भी आप नात सुनाएंगे या आपकी पसंदीदा व्यूवर्स वरी महिरबानी तव्हांजी शाइक नारे जो सुभाणे अवां सां गॾु वरी हूंदो इफ्तार विद आवाज़ में, पर थी सघे सुभाणे में बि हूंदुसि न वो सुभाणे इन करे जो मूंखे हैदराबाद वञिणो आहे, मुंहिंजी वर्सी बि आहे, मुंहिंजी बर्थडे बि आहे। ओके अच्छा ठीक है, एडवांस में हैप्पी बर्थडे शाइक खे ऐं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग व्यूअर्स। बस असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी चुकियो आहे। परवर काज़ी तरफ़ खां ख़ुदा हाफ़िज़ ऐं शाइक नारे तरफ़ां असां हलासीं नात जी तरफ़। कभी आऊं मैं मदीने, कभी आऊं मैं मदीने, तेरा जिक्र करते करते सल्लल्लाह, तेरा जिक्र करते करते मिल पल जतन का सदका, मिल पल जतन का सदका, मुझे नात पढ़ते पढ़ते सल्लल्लाह, मुझे नात पढ़ते पढ़ते कभी आओ मैं मदीने। है करम का क्या ठिकाना, कहे आका ये ज़माना, कहे आका ये ज़माना, है करम का क्या ठिकाना, कहे आका ये ज़माना, कहे आका ये ज़माना, तेरी रहमतें न कम गो, तेरी रहमतें न कम गो, कशकोल भरते भरते, कशकोल भरते भरते कभी आऊं मैं मदीने। और जिसने समझ लिया गे नामे नबी दवा गे, नामे नबी दवा गे, जिसने समझ लिया गे नामे नबी दवा गे, नामे नबी दवा गे, देखो वो बच गया गे, देखो वो बच गया गे, बीमार मरते मरते, बीमार मरते मरते कभी आओ मैं मदीने। और है कमाल ये गुलामी, दो नबी को मैं सलामी, दो नबी को मैं सलामी, है कमाल ये गुलामी, दो नबी को मैं सलामी, दो नबी को मैं सलामी। उठो कब्र में नबी पर, उठो कब्र में नबी पर, मैं सलाम पढ़ते पढ़ते, मैं सलाम पढ़ते पढ़ते कभी आऊं